And speaking of people and their logic, we were in Navsari. I and my team, we were in Navsari. The Prime Minister held a rally there. It was not a very big, huge UP-style rally that the Prime Minister holds. Very small by that standard, but decent. There was a decent crowd there. And the Prime Minister tried to explain to the people why they must continue to vote even after 27 years of the BJP being in power and about 8 years of a non-Modi government. Why should they still vote for the BJP? So it was very clear that the Prime Minister was talking directly to the voters as if the Prime Minister is in the contest, which is pretty much the case in all elections that the BJP fights in all states. It's the Prime Minister's face at the fore. So here is our ground report from Navsari, where we get you first an introduction to what has happened through the course of the day, and then what the voters, particularly supporters of the Bharatiya Janata Party think. I asked them a couple of very tricky questions, many questions that are being posed by the opponents. We got a very interesting response from them. Let's play this up. So it's a day of big rallies for all the three stakeholders here in Gujarat. One, of course, is the Bharatiya Janata Party, who are the incumbents. The Prime Minister himself here in Navsari, which is on the outskirts of Surat city. Surat, of course, a very important area of influence for the Bharatiya Janata Party. In the peak of the 2017 GST agitation, the BJP did well in this area, but the Prime Minister leaving no stone unturned. And that is why concentrating not just on Surat but even the areas nearby. This, where we are standing right now, is the Prime Minister who has just concluded his speech in Navsari. And he's expected, the Bharatiya Janata Party is expected to carry out a series of carpet bombing rallies in south of Gujarat and Saurashtra, which is of course the first phase which is going to go to polls on the 1st of December. But it's not just the Bharatiya Janata Party which is getting the crowds and is hosting these rallies. Rahul Gandhi has broken his Bharat Jodo Yatra and for the first time is campaigning today in Surat and will be going to Rajkot also to address the Congress's idea that they are still in the mix and they should not be treated as a has-been party in the contest in Gujarat. That they too exist and they've got a strong foundational base in Gujarat. And of course, the brand new entrants in Gujarat's politics, Aam Aadmi Party, their rallies are also continuing, where we know for a fact that Arvind Kejriwal is going to hold various road shows and rallies in Surat and nearby areas. So all three stakeholders have pulled out their big guns for this big contest in Gujarat. With Praveen in Navsari, Sanket Upadhyay for NDTV. ये भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री के कुछ समर्थक हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे पहले बात करते हैं। आप कहाँ, नवसारी से ही हैं? हाँ, यस। आपने सुना प्रधानमंत्री ने क्या बोला? तो आपको क्यों लगता है कि 27 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहिए? मैं मान के चल रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। मोदी जी का काम होता है। हाँ, क्यों? हम उसके आशिक है, ये भी हमारे आशिक अच्छा, है। किसके? बीजेपी के आशिक? बीजेपी, मोदी जी की। अच्छा। आपको क्या लगता है, अभी उन्होंने आज जो भाषण दिया उसमें ऐसी क्या बात थी जो आपको लगा कि ये बिल्कुल सत्य है, करके दिखाते हैं, इसीलिए हमें बहुत पसंद है। अच्छा, इस बार अभी एक तो कांग्रेस पार्टी तो है ही, भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके राहुल गांधी आए हैं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी हैं यहाँ पर। एक नहीं, दो विपक्ष हैं, उस पर आपको क्या कहना चाहिए? ऐसे तो मैं तो बीजेपी को ही मानती हूँ, क्योंकि इतना सारा बढ़िया काम किया है जनता के लिए, जनता के भाग्य के लिए इतना सारा काम किया है। जो कह रहे हैं एक मोको केजरीवाल ने, वो नहीं, मैं तो बीजेपी को। एक सेकेंड, एक मोको नहीं, एक धोको केजरीवाल, एक धोखा केजरीवाल ने। पहले तो केजरीवाल कौन है? मैं पकड़। हाँ, पहला केजरीवाल कौन है? हम जानते ही नहीं उसको। अच्छा, आप जानते ही नहीं। आज मैंने देखा प्रधानमंत्री ने भी स्टेज से जिक्र नहीं किया है उनका। कौन है? उन्होंने कांग्रेस के बारे में तो बात की। उनको इम्पोर्टेंस देने का कोई जरूरी नहीं है। उनको कौन जानता है? गुजरात में कोई नहीं जानता है उनको। मतलब वो दिल्ली में, वो दिल्ली का जाने, मतलब गुजरात। मुख्य मुकाबला बीजेपी का किसके साथ है गुजरात में?
बीजेपी का मुकाबला ऐसे तो है ही नहीं। बीजेपी आने वाली है, वही बहुत बहुत भारी। बीजेपी वन साइड है और वन साइड जाएगी। हमारे यहाँ एक सूत्र है, एक का चाले मोदी चाले, एक ही चलेगा मोदी ही चलेगा, एक का चाले मोदी चाले। लेकिन देखिए, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, 27 साल हो गए और 27 साल के सवाल बहुत सारे हैं, प्रशासन से सवाल हैं, अभी मोरबी का हादसा हुआ उससे जुड़े हुए सवाल हैं, फिर भी आप कहते हैं कि इसी सरकार में आप विश्वास दिखाएंगे। नरेंद्र और भूपेंद्र की सरकार क्यों? भैया सवाल होके तो 27 साल कोई सरकार चलती ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, सब खड़े किए हुए बोगस सवाल है सब। हाँ, आपका जवाब जी। हर जगह पे आप देखने जाओ तो विकास हुआ है। रोड रास्ता पानी की बात तो हर कोई करता है, हर कोई कर ही रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 27 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और अभी माननीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में विकास का कार्य हो ही रहा है। हर घर हर जगह सब कुछ पहुंचाई है। और रही बात आपने जो बोला कि ये जो पुल ब्रेक हुआ था वगैरह, वो किन गिने चुने लोगों की वजह से हुआ था, उसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं, पार्टी का कोई ब्लेम नहीं है। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं आपके लिए? आपको क्यों लगता है कि बीजेपी ही एक बार, क्योंकि 2017 में सूरत में इतना बड़ा जीएसटी को लेकर के आंदोलन हुआ इस इलाके में, लेकिन फिर भी यहाँ से बीजेपी ही जीती, तो आपको लगता है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी हर लोगों के दिल में बसी हुई पार्टी है। और हम लोग इतने साल से भारतीय जनता पार्टी को हमारा प्यार देते आ रहे हैं, और उन्होंने उसके सामने हम लोग को, और पार्टी ने हम लोग को भी इतना प्यार दिया है, और पार्टी ने विकास करके दिखाया है। तो हम लोग काफी सारे लोग, हर कोई इधर गुजरात में जब किधर भी जाओगे तो नरेंद्र भाई मोदी और बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं। बीजेपी की सरकार बनने वाली है, और वो भी ऐतिहासिक एक रिकॉर्ड बनेगा। वो तो है, लेकिन पिछली बार 2017 में आपको याद होगा 99 पे भी आ गई थी यही सरकार। इस बार नहीं होगी, इस बार 99 की नहीं, इस बार 150 आराम से होगी। अरे ऐसे 150, आपकी तो जितनी हाइट है उतना ज्यादा नंबर दे दिया आपने। हमारे प्रदेश प्रमुख CR पाटिल साहब ने संकल्प लिया है 150 आराम से और जंगी बहुमति से जीतेंगी, और भाजपा की सरकार। ये थोड़े बहुत किसके लिए छोड़े हैं आपने? चिमन भाई पटेल का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। थोड़े बहुत छोड़े हैं कि थोड़े बहुत कोई पुराने कार्यकर्ता है उनको थोड़े बहुत मिल जाए, जैसे तो ऐसे तो 182 ही मिलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा तो बीजा माटे જોઈએ ना। विकास की बात करें तो खेलने, हाँ विकास की बात करें तो गेम्स के लिए बहुत सारा आयोजन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। जैसे कि छोटे बच्चे गांव से लेके बड़े तक बच्चे है ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं खेलो इंडिया में। उन्होंने बहुत सारा आयोजन किया है। मेरी बच्ची भी एक गेम्स में आगे है, उसने रिकॉर्ड किया है, और उन्होंने बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है किया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार भी नरेंद्र मोदी जी आने चाहिए। अच्छा, इतना जो सवाल है कि पेपर लीक हो जाता है और प्रशासन बात नहीं सुनती, भ्रष्टाचार का एक प्रश्न लगता है, आपको नहीं लगता ये मुद्दे हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो सब दूसरे लोग भ्रष्टाचार है, ऐसा हम तो है ना भड़काने के लिए करते हैं। बीजेपी वाले को भड़काने के लिए सारा भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मोदी जी की सरकार ऐसा कुछ नहीं करती। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ दूं आपसे, अगर कुछ नहीं था तो फिर पिछले साल पूरी की पूरी कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर सब बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले साल किया वो, पिछले साल जो उन्होंने पूरा घर के ही बदल दिए सारे बल्ब, ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी? ऐसा तो आपको क्या लगता है? नए लोगों को चांस, नए युवा लोग जो आए, जो अपना प्रोत्साहन उनको दे, चांस दिए, उनका जो आइडियाज रहते हैं वो उनको से क्राइटेरिया बदल के जो कुछ करना चाहते हैं उसका मौका दिया है। अच्छा, हाँ, आप क्या कह रहे थे? नए मतलब जैसे सरकार बदल गई, उससे क्या है कि नए मुख्यमंत्री आ गए, पूरी कैबिनेट चेंज हो गई, नए जो MLAs है वो नए आ गए, उनके मतलब उनके विचार है अलग है, वो हिसाब से काम करेंगे। मतलब पिछली जो सरकार थी वो भी मजबूत थी, जो नई आई है वो 1 साल से वो भी मजबूत ही है, और मजबूत ही रहने वाली है हर बार। इसीलिए जो ये कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसा कोई है नहीं कि भाई सरकार क्यों बदल गई। पर किस हिसाब से आपने ये 150 का आंकड़ा लगाया है? कुछ तो गणित लगाई होगी ना? जिस तरह पक्की आने वाली है 150 सीट, पक्की आने वाली है। ज्यादा आने वाला है सीट, वो तो हमने तो ऐसा अंदाजा लगाया, पर 150 से ज्यादा। जिस तरह आप अभी गुजरात में घूम रहे हो, हर जगह भगवा लहरा रहा है, उसके ऊपर से आपको भी अंदाजा तो होगा कि 150 का प्लस तो आने वाला है। 2002 से अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है तो गुजरात के लोग जो वोटिंग कर रहे हैं तो वो तो बहुमति से आ रही है, तो इनमें कोई शंका करने की बात ही नहीं है। तो आप तो लोगों के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं। ये तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, लोगों सवाल पूछने दीजिए। देखो, बीजेपी के प्रति लोगों का प्रेम है। दूसरा है कि बीजेपी ने जो काम किया है
उसकी कदर करके ये वोटिंग हो रही है, समझिए। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल, ये कहा जाता है, कांग्रेस का आरोप ये है कि जहां जहां एक तीसरा प्लेयर आ जाता है, जैसे यहाँ आम आदमी पार्टी आ गए, वो वोट काट देते हैं और उसके बाद फिर बीजेपी का भला कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की भूमिका जो कांग्रेस कह रही है वो है, या वो जो अपने आप को एक मजबूत विपक्ष की तरह बनाना चाहते हैं गुजरात में, वो है? जिस जगह पे गांधीनगर में, आप एग्जांपल दूं कि गांधीनगर में कांग्रेस का जिधर नगर पालिका का था, महानगर पालिका, वहीं पर ये हुआ कि वो सीट लोग ने बोला कि आम आदमी पार्टी की सरकार उधर बन रही है, आम आदमी पार्टी का चुनाव आ रहा है, तो उधर भाजपा आ गई जिधर कांग्रेस था। तो अभी बात सुनो, तो अभी गुजरात में इन लोग बोल रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है। उन लोग की खुद की डिपॉजिट जा रही है, उनको पता है, वो खुद उनको पता है, क्योंकि उन लोग के पास जितने सिटीज के अंदर आप देखो कार्यकर्ता है ना, उतना तो हमारे सोशल मीडिया की टीम में पड़े जिला के अंदर। भारत माता की एक आरोप ये भी लगता है, मेरा आखिरी सवाल, कि तन मन धन बल हर किसी का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर देती है, कि और कोई मैच ही नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सूत्र है, संघर्ष, सेवा और बलिदान। तो यही सब चीज है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक ही मुद्दा है गुजरात में। इसी बलबूते पे 150 प्लस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल मैंने आपसे पूछा, आप इधर आइए, आप बहुत लंबे हैं। हाँ, इनसे एक सवाल मैंने ये पूछा कि ये जो 150 आप बीजेपी को दे रहे हैं, बाकी थोड़ा बहुत किसके लिए छोड़ा है और क्यों, वो भी कर लो। ठोकने वाला भी चाहिए ना, विधानसभा में टेबल ठोकने वाला भी चाहिए ना कोई। जैसे बीजेपी के अच्छे काम हो रहे हैं, बीजेपी के मतलब जैसे भी कैबिनेट में अच्छे काम पास होंगे, तो विरोध कोई बताने वाला भी चाहिए ना, जितना विरोध करेगा उतना बीजेपी ऊपर जाएगा। अच्छा, तो विपक्ष के लिए छोड़ा है इतना, थोड़ा छोड़ा है, तो ही काम करने को बीजेपी को मजा आता है। केजरीवाल की तो 2-3 सीटें आएगी नहीं, केजरीवाल खाता ही नहीं खुलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका। ये था नवसारी का मूड, नवसारी के दिल में क्या है ये हम लोगों ने जाना। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की रैली जो हुई है नरेंद्र मोदी की, वहां की जनता का मूड है। अब ये इस रैली की जगह से अलग हटके भी नवसारी का मूड है या नहीं, वो हम पता करेंगे।